Sir, firstly, thank you so much for joining me today. I know it was very short notice, so I really appreciate you taking out time for me. So, नहीं नहीं थैंक यू विराज फॉर आस्किंग मी टू बी ऑन योर शो चैनल या जो भी मैं कहूँगा इनफैक्ट बड़ा अच्छा लगता है यार व्हेन आई सी यंगस्टर्स लाइक यू बीइंग मल्टी डायमेंशनल but when I started off as a journalist I was a print journalist but television happened but आप लोगों को देखते देखते we've tried to keep pace और पिछले 3-4 साल से जो डिजिटल बूम आया है so we've also tried to make use of that and I'm very happy that youngsters like you they keep pushing us. thank you, sir. No, and you inspire me every day in England. I sit and I watch sports stuff on YouTube क्योंकि आज तक तो हमें You नहीं do? लगता. Yeah, every day I watch your show. I watch the 1 hour specials you do after every game, and even the ones you reminisce about old matches. 2003 World Cup, especially, I remember. That was the first one I'd watched actually. First lockdown में देखना शुरू किया था. Oh, अच्छा. तो चलो, सर very nice. Thank you very much. तो सर मेरा फर्स्ट क्वेश्चन था आपने you just touched upon it. You started in print journalism. तो Yeah. did you always think कि आपको टीवी में जाना है कि it just happened by chance? I used to always think कि मैं टीवी में नहीं जाऊंगा. So I ऐसा never wanted to be in TV. I don't know. देखो, see when I started off as a print journalist, तो television बहुत माइनर सा टेलीविजन था. न्यूज एंड बूम आया है 2001 onwards जब you know 2-3 चैनल्स जो थे they became 24-hour न्यूज चैनल्स बट न्यूज टेलीविजन वाज डिफरेंट. और देखिए उस वक्त अखबारें भी ना they were different. तो I was a youngster. ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा आदमी था but I was a youngster. I used to write on cricket because मैं थोड़ा बहुत खेला भी हुआ था. I used to say कि यार मैं तो I'm a cricket writer. I'm not a cricket writer, but somebody who's aspiring to be a cricket writer. So there was a difference. Cricket journalist और cricket writer में फर्क होता है. Cricket journalist है जो आपको खबरें लाके देता है on the beat. Cricket writer वो है जो गेम के ऊपर लिखता है. You know who writes on the game, the nuances of the game, on this, on that. So I used to think कि यार एक दिन ना cricket writer बनना है. Television was never मतलब an option. In fact, television उस time पे was different. अब तो टेलीविजन इट हैज डिफरेंट स्कोप्स. पहले इतने स्कोप भी नहीं थे. इनफैक्ट मैं नाना 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 करते करते ही बस आई जॉइंड आज तक एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डेट. मैं इंडियन एक्सप्रेस में था एंड 6 years आई स्पेंट और आई थिंक मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई वहां पे. शेखर गुप्ता थे, ही वाज द एडिटर इन चीफ एंड माय स्पोर्ट्स एडिटर वाज वी कृष्ण स्वामी. प्रदीप मैगजीन थे, ही वाज द क्रिकेट एडिटर. तो इन लोगों से बहुत सीखा. So when I joined television आज तक on the 2nd of January 2003, तो मैं चंडीगढ़ से आया था शताब्दी एक्सप्रेस में एंड मैं उतरा got off at the New Delhi railway station. बड़ी ठंड थी एंड देन for me the change was कि मुझे बताया गया कि टेलीविजन में आपको ना 11 बजे ऑफिस आना है दिन में एंड न्यूज़पेपर्स में I was not used to that drill. So newspapers में you would either go in at 3, 4, 5 or 6 o'clock in the evening. और रात तक आप obviously काम करते ही हो. टेलीविजन में मुझे लगा अच्छा 11 बजे ऑफिस जाना है. So I was a bit मतलब hassled also सुबह सुबह उठना. But I thought कि अच्छा यार ये corporate job होती है ना जैसे 9 to 5, 10 to 6 type job होगी. But टेलीविजन जब start किया I went to the World Cup 2003 South Africa. And my initiation wasn't very good because अचानक से टेलीविजन ने क्रिकेट करना शुरू किया, मल्टीपल शोज हुए. I didn't know anything about television to be very honest. बस जैसे जैसे वर्ल्ड कप निकला, इंडिया डिड वेरी वेल एंड आई वाज क्वाइट एडमेंट कि मैं वापस आऊंगा और अब मैं वापस चले जाऊंगा इंडियन एक्सप्रेस पे. बट एज इट टर्न्ड आउट दैट नेवर हैपेंड. और टेलीविजन भी ऐसी चीज थी. Once you start getting a hang of it, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूँ, किसने मुझे कहा था once you start getting a hang of it, आप जा ही नहीं सकते छोड़ के. And that happened with me. And then there was also a time जब आज तक ने इंडिया टुडे ग्रुप ने क्रिकेट को बहुत बड़ा किया. So 15 मिनट का एक शो होता था दिन का. Then we were doing almost 15 shows a day. So it reached a point जहाँ पे बंदा शाम को ऐसे थक जाता था कि और कितने शोज हैं. तो क्रिकेट ने ड्राइव किया न्यूज टेलीविजन को बहुत ज्यादा.
And sir, one thing I wanted to ask was, you spoke about being in print journalism for a while before you got into TV. तो एक learning क्या थी, सबसे बड़ी learning that you brought with you from written journalism to then doing TV? See, TV, as I said, Hmm. initially wasn't very easy for me because जी. वो stories कैसे करनी है, क्या क्या करना है. But fortunately, chats बहुत होते थे. जी. Live दे रहे हो आप ground के बाहर से. And उसमें obviously आपका जो cricketing acumen था, that mattered. I जी. mean, I'm a North Indian, I'm a Punjabi. Hmm. So Hindi wasn't an alien language for me. Hmm. मुझे हिंदी आती थी, हाँ, थोड़ी सी अपनी diction पे काम करना पड़ा, थोड़ा सा because पंजाबी टच आ जाता था हिंदी में, तो वो करते करते, एंड देन आप टीवी करते हो यार, जो मर्जी हो आप कॉन्शियस तो होते ही हो ना टू बिगिन विद. आपको कैमरे से आपकी दोस्ती नहीं होती है. सो दैट टुक टाइम. आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक हो गया. लेटर ऑन आई रियलाइज्ड कि देयर वाजंट मच ऑफ अ स्विच एक्चुअली. जो स्विच था वो आपके वर्क कल्चर में होता है, नॉट इन व्हाट यू डू बट हाउ यू डू. बिकॉज इन अ न्यूज़पेपर यू आर ऑल अलोन. सपोज मैं वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका गया हूँ इंडियन एक्सप्रेस के लिए, मैं अकेला हूँ. मैं जब मर्जी सोऊं, जब मर्जी उठूं, एंड दैट स्टोरी इज हियर इन माय माइंड एंड आई कैन डू एनीथिंग आई वांट टू एट माय ओन पेस. इसमें ये होता है कि द स्टोरी इज हियर. जो मुझे प्रॉब्लम आई, बट आई ऑल्सो नीड टू कम्युनिकेट इट टू द कैमरा पर्सन, बिकॉज अब मैं एक इंडिविजुअल गोल्फर या बैडमिंटन प्लेयर नहीं हूँ. I'm a football player or a cricket player who's dependent on the other 10 players as well. फिर मैं कितने बजे सोऊं से इम्पोर्टेंट है वो कितने बजे सोएंगे. जी. मैं सुबह उठ गया बट वो उठा के नहीं उठा, and I'm chasing him. ठीक है, मैं I am mentally working on my stuff. Is he doing that? So वो चीजें जो थी, आहिस्ता आहिस्ता realized it was the work culture. But let me tell you one thing, Viraj. टेलीविजन में ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है. लुक बैक, अखबार में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी. सर, आपने टीम वर्क की बात की, और जब स्पोर्ट्स खेलते हैं तो एक वर्ड यूज करते हैं, इन द जोन. और जब आप टीवी में काम करते हो, सो डू यू आल्सो हैव टू बी इन द जोन जब आप ऑन स्क्रीन जाने वाले हो? यार देखो, हर इंसान का डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट प्रिपरेशन है. तो आई डोंट थिंक कि मैं जो बोलूंगा दैट होल्ड्स ट्रू फॉर द अदर्स आल्सो. बट मुझे शुरू में somebody told me कि टेलीविजन से ना दोस्ती कर लो, कैमरा से दोस्ती कर लो. The moment you start thinking कि यार आज तक को crores and crores of people are watching, you become conscious. आप नहीं कर सकते. तो बस वो दोस्ती हो गई. And fortunately for me, Viraj, I was doing cricket. My vacation became my vocation. मेरा जो शौक था वो मेरा पेशा बन गया. तो I was happy doing it. In fact, I wanted to do more and more and more. तो जोन वाला नहीं होता, बाकी स्विच ऑन स्विच ऑफ तो करना पड़ता है. यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि अभी भी, इवन नाउ, सपोज 7:30 मेरा शो होता है एंड 7:29 पे हेडलाइंस आती हैं. उस मोमेंट तक मैं अपने मतलब इधर उधर भी कर रहा होता हूँ, सोच रहा होता हूँ. एंड कभी कभी तो ये होता है कि हेडलाइंस के बाद एक 15-20 सेकंड्स का स्टिंग आता है. जी. मैं आई नेवर डू एनी स्क्रिप्टेड शो. सिर्फ हेडलाइंस बाहर टीपी पे लिखी होती हैं. अगर टीपी फेल हो जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं. तो कभी कभी इन दोस 15 सेकंड्स जो स्टिंग चल रहा होता है ना, मैं साथ साथ सोच रहा हूँ यार ओपन कैसे करूँ, ओपन एज इन शो ओपन कैसे करूँ, व्हाट शुड आई से. तो कभी कभी मैंने देखा है कि आप ज्यादा सोचो ना, आप प्रेशर में आ जाते हो. देयर बीन स्पेशल शोज जो आपको सोच के जाना पड़ता है, यार मैं ऐसा शुरू करूंगा, ऐसा करूंगा, उसमें आप फंस जाते हो. एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन जो आपके गेस्ट्स हैं या जिनके साथ आप कर रहे हो, उनका और आपका व्हाट इज द मतलब ट्रैफिक बिटवीन द टू ऑफ यू. Yeah, and that's what I was going to ask, sir. जब आप शुरू किए थे 2003 में, जैसे आप बोल रहे हो आपने किया था, तब मे बी जब आप टीवी कर रहे थे तो आपका रैपो बिल्ड नहीं हुआ होगा इनिशियली, बिकॉज आप पहले से मे बी नहीं जानते होगे क्रिकेटर्स को तो, या कोई पंडित को. तो व्हेन दैट इज हैपनिंग इनिशियली, तब कितना डिफिकल्ट होता है व्हेन यू एक्चुअली नो द पर्सन टू अपोज टू कि व्हेन यू डोंट नो द पर्सन एट ऑल. वो टीवी पे रैपो बिल्ड कैसे कर पाते हैं? विराज देखो, यू आर राइट.
मतलब रैपो ओवरनाइट नहीं बनती है, कंफर्ट ओवरनाइट नहीं बनता है। मुझे थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि मैं क्रिकेट खेला हुआ था, हम्म, और मैं मतलब आई आई न्यू, हम्म, थोड़ा बहुत खेला हुआ था, तो आप एक एज ग्रुप के थे, तो उन प्लेयर्स को भी मैं जानता था जो इंडिया खेल रहे थे। और द गुड थिंग वाज, इनिशियली ही मेरी रैपो बननी शुरू हुई। जैसे मदन लाल जी फॉर जी, एग्जांपल, तो वो पंजाब के थे, मेरे फादर को वो जानते थे अच्छी तरह, तो थोड़ा सा वो रिगार्ड हो गई। चेतन चौहान जी थे, हम्म, कपिल देव, देन सौरव गांगुली, ही वाज द इंडिया कैप्टन। तो करते करते हरभजन युवराज तो ऑलरेडी हम्म, मैंने उनको छोटी एज से भी देखा हुआ था। बट एक्चुअली क्या हुआ, कभी कभी आपका अगर रैपो नहीं होता ना, दैट एक्चुअली वर्क्स टू योर एडवांटेज, बिकॉज देन यू आर अंडर नो ऑब्लिगेशन। हाँ, आपको जो सच दिखता है आप बोलते हो। लेटर ऑन आई रियलाइज, when you get close to players, some players, जी, you also try to hide their failures. आप सच नहीं बोल पाते हो, आप सच नहीं बोल पाते हो, क्योंकि अगर मैं रन नहीं बना रहा हूँ या मैं विकेट्स नहीं ले रहा हूँ, मैं जो मर्जी हूँ, हम्म, और आप अगर मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हो, आप कह रहे हो यार ये रन नहीं बना रहा, हम्म। तब भी उसको अच्छा नहीं लिया जाता। दैट criticism is never taken kindly. एंड सर अब नाउ बिकॉज ऑफ कोविड भी आप टीम किस आप मैच देखने लाइव नहीं जा रहे हैं वहां पे, आप स्टूडियो से वर्क कर रहे हो ओवर द लास्ट 2 इयर्स एज अपोज टू पहले जब आप गेम्स पे जा रहे थे, तो ऑब्वियसली प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन उतना नहीं होता है जितना आप उधर वहां हो सेम होटल में रह रहे हो तब होता होगा। तो डज दैट मेक योर जॉब इजियर इन टर्म्स ऑफ बीइंग एबल टू क्रिटिक द प्लेयर ऑब्जेक्टिवली? See, Viraj, not everything for a TV journalist is criticize ही करना। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स, बट आई एक्चुअली आपका काम ये है कि यू आर द वाया मीडिया, मीन एंड द जॉय ऑफ द गेम वो आप अपने व्यूअर को देते हो। इट्स नॉट जस्ट द कोविड सिचुएशन, लास्ट आप देखें 5-7 साल में थिंग्स हैव चेंज्ड। पहले मीडिया यूज्ड टू ट्रैवल अलॉट, क्रिकेट पे हर चैनल 5-5 रिपोर्टर जा रहे हैं, एंड ऑब्वियसली यू वुड कैच होल्ड ऑफ द प्लेयर्स आल्सो। फिर ये आज से 5 साल पहले वो कोड ऑफ कंडक्ट और ये सब लगाना इन्होंने कि इंटरव्यूज नहीं होगा, ये नहीं होगा, देन चैनल्स ने कम कर दिया। फिर अब मैं भी बहुत कम ट्रैवल करता हूँ, जैसे कोई वर्ल्ड कप आ गया, चैंपियंस ट्रॉफी आ गई, इस तरह के इवेंट्स हो गए, कोई बहुत बड़ा। नहीं तो पहले तो हम हर जगह जाते थे, जब आप हर जगह जाते हो तो उस जनरेशन के हर प्लेयर के आप उनको शाम को मिलते मिलते। जी। अब ऐसा नहीं होता। एंड सो आई वांटेड टू आस्क, आप यू जस्ट सेड कि अब चेंज हो गया, कोड ऑफ कंडक्ट आ गया 5 साल में। आप 2003 से क्रिकेट पे रिपोर्टिंग कर रहे हो ऑन टीवी, तो ये लास्ट ऑलमोस्ट 20 इयर्स में सबसे बड़ी चेंजेस क्या हैं आपके हिसाब से एज अपोज टू जब शुरू किया था आपने? यार देयर इज अ वॉल बिटवीन द प्लेयर्स एंड द मीडिया नाउ। सोशल मीडिया जब से आ गया, देखिए पहले जब हम जाते थे तो प्लेयर्स कहते थे यार ये ना वीडियो मत बनाना यार, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, वो खाना खाने जा रहे हैं ना यार प्लीज यार ये मत बनाना। अब आप प्लेयर्स को देखो सोशल मीडिया पे, टी शर्ट उतार के अपनी वो टी शर्ट के बिना वाले तस्वीरें भी डाल ही देते हैं ना, जी। वो भी तो डाल ही रहे हैं ना। हम्म, सो चेंज ये है कि पहले जो हल्की चीज भी आप चाहते थे, द मीडिया शुड नॉट कवर, यार हम्म, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है। बट दैट वाज आल्सो डिफरेंट जनरेशन बाय द वे, हम्म, दैट वाज आल्सो डिफरेंट जनरेशन। अब ये जनरेशन ये डिफरेंट है, नॉट जस्ट द क्रिकेटर्स, यू आल्सो, हम्म, योर योर व्यूअर्स आल्सो, दैट्स आल्सो डिफरेंट जनरेशन। तो अब वो सोशल मीडिया पे सिक्स पैक भी दिखाते हैं, जी। है ना। और उस जमाने में अगर ऐसा होता सचिन तेंदुलकर की हम ऐसे वीडियोस ले लेते टी शर्ट उतारी हुई, तो आप बताइए क्या अंदर। सो ये चीज हुई है। बट आई थिंक अनफॉर्चुनेटली देयर इज अ वॉल बिटवीन द cricketers and the media now. I don't know, it suits them or maybe it doesn't suit them. It suits a couple of big players, बाकियों को तो नहीं सूट करता है। जी। मैं तो ये हमेशा कहता हूँ कि जब आप आज से 15 साल पहले वाली टीम उठाएं, हर टीम के हर प्लेयर के साथ इंटरव्यूज होते थे टीवी पे, तो भाई वो घर घर में उनकी आवाज भी जाती थी, जी। उन सबको एड्स भी मिलती थी, देवर ऑल्सो आइडेंटिटीज। या अब कितने लोगों को मिलते हैं कमर्शियल एड्स? सर। मोर मनी या बट लेस प्लेयर्स, या एक या दो। सो या व्हाट अबाउट अदर्स?
जो मीडिया पे भी नहीं दिखते, उनकी रीच भी जो है वो छोटी रह गई है, तो उनको तो नुकसान ही है ना फिर। और सर ये सोशल मीडिया की आपने बात की, तो पहले एक्सक्लूसिव स्टोरी जब आप करते थे, जब ब्रेकिंग न्यूज में, तब थोड़ा इजियर होता होगा बैक देन की प्लेयर्स के, बिकॉज प्लेयर्स आल्सो वांटेड टू गेट सपोज सम इंफॉर्मेशन आउट देयर, नाउ दे कम टू यू। जैसे आपने एक बार बोला था कि आपने सौरव गांगुली के साथ जब एक इंटरव्यू किया था, आई थिंक इट वाज 2006 या 7, आई इफ आई एम करेक्ट। तो हाउ हैज दैट चेंज? अब एक्सक्लूसिव या ब्रेकिंग न्यूज स्टोरी ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है बनाना कि? नहीं, अब एक्सक्लूसिव्स नहीं होते हैं। अब बहुत मतलब, सी एक्सक्लूसिव क्या होता है? एक्सक्लूसिव होता था कि आप टूर पे गए हो, सेंट लूसिया टेस्ट मैच 2006, वीरेंद्र सहवाग ने 180 रन बनाए, शाम को उनका इंटरव्यू हमने करना है, वो करना है तो करना है। सौरव गांगुली मेड अ कमबैक 2006 में जोहानिसबर्ग में, उन्होंने 50-60 रन बनाए, हालांकि टीम ने कहा नहीं नहीं गैग ऑर्डर, वो इंटरव्यू करना तो करना। वो पहले डिफरेंट था इन अ सेंस, ये भी स्ट्रीमलाइंड है। अब नहीं होगा तो नहीं होगा। अब इंटरव्यूज होते हैं थ्रू एजेंट्स, एजेंसीज हैं जी, उनको सूट करता है, उनका एक प्रोडक्ट आ रहा है तो ब्रांड एंडोर्समेंट, वो चीजें होती हैं। उसमें ऑब्वियसली यू कांट आस्क क्वेश्चंस, आप पूछ भी नहीं सकते, क्या पूछोगे आप? जी तो इट्स ओके। सी, ये जो डिजिटल मीडिया आ गया है ना, जी डिजिटल मीडिया ने आपके सुनने वाले देखने वाले की प्यास बढ़ाई है। बिकॉज सी, टीवी वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड, वेरी स्ट्रक्चर्ड। ये डिजिटल मीडिया स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अगर हम जो कर रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं ना, आपका कैमरा भी हिल रहा है, मेरा कैमरा भी हिल रहा है, मेरे बाल बिखरे हुए हैं। सो टेलीविजन आप ऐसे नहीं करते, बट दिस इज एस्पिरेशनल। यही लोग देखना चाहते हैं कि इसी तरह की क्या कहते हैं उसको, कॉन्वर्जेशनलिस्ट सुनना कॉन्वर्सेशन। चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसीलिए आप देखना कि डिजिटल मीडिया अगेन, इफ इट इज हैंडल्ड वेल, इसमें भी अगर बहुत ज्यादा शुरू हो गया और फिर किसी दिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो या फिर ये भी बंद हो जाएगा। बट राइट नाउ, मतलब डिजिटल मीडिया इफ यूज्ड वेल इज अ वेरी गुड टूल, वेरी गुड प्लेटफॉर्म। और सर डिजिटल मीडिया की आपने बात की, स्पोर्ट्स तक आपका डिजिटल चैनल है यूट्यूब पर, एंड मैं पूछना चाह रहा था कि आप लोग ने कब डिसाइड किया कि आप लोग को डिजिटल में भी घुसना है, एंड व्हेन डिड दैट आइडिया ऑफ स्पोर्ट्स तक हैपन? यार आई रिमेम्बर जो 2015 वर्ल्ड कप होना था ऑस्ट्रेलिया में, तो हमारे ऑफिस में जो हमारी सोशल मीडिया टीम थी, उन्होंने कहा यार फेसबुक लाइव, फेसबुक पे ऐसे ऐसे हम करना चाहते हैं। जहां तक मुझे याद है, द फर्स्ट फेसबुक लाइव आई डिड वाज, उसी वर्ल्ड कप की बात है शायद, 15 वर्ल्ड कप जाने से पहले शायद, जैसे टीम अनाउंस हुई थी या कुछ हुआ था, तो उसके 3-4 लाख व्यूज आ गए थे उस टाइम पे, तो पीपल वर वेरी हैप्पी। फिर 16 में मैंने एक आईपीएल चल रहा था, 17 आईपीएल में, जी तो फेसबुक का मैं वो कर देता था नीचे चाय वाली जगह पे ना, सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ। देन दैट इज वेयर दैट आइडिया ओरिजिनेटेड जी कि यूट्यूब चैनल्स आएंगे, और सिर्फ स्पोर्ट्स तक नहीं, भारत तक, न्यूज तक, ऐसे कई डिफरेंट तक आए, क्राइम तक। एंड फिर उसके बाद करते 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 पीपल स्टार्टेड लाइकिंग इट, एंड वी केप्ट एडिंग, अच्छा इसमें ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो। आज देखिए 90% मेरा जो काम होता है इज स्पोर्ट्स तक, रादर देन आज तक, दिन का। जी। और सर आपने कभी इमेजिन किया था जब शुरू किया था स्पोर्ट्स तक चैनल, क्राइम तक, ये न्यूज तक, जब आपने शुरू किया था कि इतने बड़े हो जाएंगे ये, इतने इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगे? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं। इनफैक्ट वेयर वी आर टुडे, मैंने 1.5 साल पहले भी नहीं एंटिसिपेट किया था। जी। बहुत मतलब पीपल हैव बीन वेरी काइंड। एंड सर ये मैं पूछना चाह रहा था कि आपने एक्चुअली थोड़ा बहुत आंसर कर ही दिया उसको कि डिजिटल में इज मोर कॉन्वर्सेशनल, पर मैं पूछना चाह रहा था कि आपके माइंडसेट में कोई चेंज आता है जब आप टीवी कर रहे हो एज अपोज टू डिजिटल, जब आप स्पोर्ट्स तक आता है, करते हो? टीवी जैसे मैंने कहा इज स्ट्रक्चर्ड, तो उसमें आपको फिर भी यू गॉट टू स्टे विद इन द पैरामीटर्स। डिजिटल में भी देर आर पैरामीटर्स, बट इसमें इट इज फार मोर रिलैक्स्ड। हालांकि एक बात बताऊं, अगर डिजिटल ज्यादा देखा जा रहा है, सूनर देन लेटर टेलीविजन का स्टाइल भी तो चेंज होगा। जी सो
टेलीविजन को भी थोड़ा सा अपने आप को वहां कॉन्वर्सेशनिस्ट वहां पे लेके आना होगा, हम्म, थोड़ा सा इनफॉर्मल करना होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जी। डिजिटल बहुत ज्यादा इनफॉर्मल हो जाता है। और सर इसलिए मैं पूछना चाह रहा था कि आपको लगता है डिजिटल और टीवी दोनों की जगह अपनी है एक ये इस मीडिया वर्ल्ड में हम्म। टुडे? लोग कहते थे न्यूज़पेपर्स बंद हो जाएंगे, कौन से न्यूज़पेपर्स बंद हुए? जो अखबार पढ़ता है वो आज भी पढ़ता है, आज भी पढ़ा जाता सर मैं लास्ट के कुछ 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आई विल मूव टू क्रिकेट नाउ। सो आप आईपीएल आ रहा है, ऋषभ पंत हैज नाउ बीन नेम्ड दिल्ली कैप्टन। ऑफ कोर्स ही हैड अ ड्रीम लास्ट 6 मंथ्स एंड आपने तो शुरू से ही उसको बैक किया है टू कि ऋषभ पंत इज द टैलेंट, उसको बैक करना चाहिए। आपको क्या लगता है कैप्टनसी उसको हेल्प करेगी कि नहीं? है। यार ये तो देखिए, दिस इज अनचार्टेड, हमें तो नहीं पता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट ऋषभ पंत इज कमिंग ऑफ एन आउटस्टैंडिंग 4-5 months, जी। एंड ही शोन कि यार उनमें कुछ लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अगर वो एक इतना यंग जूनियर प्लेयर होके भी कप्तान को आइडियाज दे रहा है, इसको आइडियाज दे रहा है, तो विच मीन्स ही इज गॉट दैट, वो उनके अंदर है वो। अब वो ट्रांसलेट कैसे होता है डिपेंड्स ऑन द स्टार्ट। कभी कभी यू मे बी एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडर, शुरू के 2 मैच आपके अच्छे नहीं जाते, आपकी बैटिंग पे उसका असर दिखता है, एंड देन यू आर ऑफ, आपका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है। हम्म, ऑल्टरनेटिवली ये भी हो सकता है कि आपने शुरू के मैच में बनाए 70-80 रन और आपने मैच भी जिता दिया। हम्म, कप्तानी में कुछ ऐसा नहीं करना होता मैच जिताने के लिए, यू जस्ट हैव टू बी अ नॉर्मल कैप्टन, राइट डिसीजन एट द राइट टाइम एवरी टाइम, गलतियों की गुंजाइश कम होती है। तो सी, लीडरशिप, नोबडी इज बॉर्न अ बॉर्न लीडर। और अगर विराट को जब कप्तानी मिली थी तो आप ये नहीं कह सकते कि ये अपनी पीक पे है। कप्तानी में भी आपको यू हैव टू लर्न एवरी डे, जी। यू हैव टू कीप इवॉल्विंग, आप सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो। सो ऋषभ विल आल्सो लर्न, बट आई थिंक इट्स अ गुड ब्रेक फॉर हिम, because he wanted to lead Delhi. Between me and you, he wanted to be the captain. Unfortunately, श्रेयस अय्यर को बाहर हो गए और उस चक्कर में इनको कप्तानी मिली. But Rishabh wanted to lead the Delhi Capitals. But now this is his chance, and hopefully, sir, he grabs it with both hands like he has done with every opportunity in the last 5-6 months. And sir, ये एक और सवाल था, ये Ricky Ponting is the coach of Delhi Capitals, and of course we all know he's been such a great captain for Australia. His influence on Rishabh Pant in terms of his learning for leadership, कितना influence होगा उनका on Rishabh? I think उनके गेम में भी होगा. भाई इतने साल से तो Ricky Ponting's been in that dressing room, and they, I think, have mutual admiration for the other, mutual respect for the other. और जैसे मैंने कहा यार, रिकी पॉन्टिंग खुद भी तो ही वाज एन आउटस्टैंडिंग कैप्टन. Yeah. आप सीखते हो. एक तो आईपीएल ने ये किया है ना, इंटिमिडेशन खत्म कर दी है कि जी वो हो इतना बड़ा प्लेयर इसके साथ, अब आप तैयार होके आते हो. इसीलिए आपकी इंडियन क्रिकेट टीम में जो न्यू इंडियन क्रिकेट टीम जो है, Yeah. ये डरते थोड़ी है, खौफ ही नहीं है किसी चीज का. And exactly sir, ईशान किशन की डेब्यू देख ले या प्रसिद्ध कृष्णा, सूर्य कुमार यादव, और उसके पहले शार्दुल ठाकुर, वॉशिंगटन सुंदर इन ऑस्ट्रेलिया. आई से शार्दुल ठाकुर का डेब्यू क्योंकि पहले मैच में तो वो बहुत जल्दी इंजर हो गए थे. बट yeah, to see all of them coming through, how big a role do you think IPL has played in them just coming and taking to international cricket like fish to water? आईपीएल बहुत बदनाम रहा है बीच में जी. कि जी ये वो. इट इज नाउ द ड्राइविंग फोर्स फॉर इंडियन क्रिकेट. ओवरनाइट थोड़े रिजल्ट्स आते हैं, रातों रात रिजल्ट तो नहीं आते हैं, टाइम तो लगना ही था. बट आज आईपीएल की न सिर्फ एक फाइनेंशियल क्लाउड है, आई थिंक एवरी बिग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड wants to come do well in the IPL because they know now, यार ये तो भाई हमें एनालाइज किया जाता है आईपीएल के परफॉर्मेंस पर. आप इंडिया के प्लेयरों को देखो, छोटे छोटे शहरों के जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से पहले तैयार होके आते हैं. आईपीएल ने आपकी क्रिकेट को मतलब बदल ही दिया, आपकी सोच ही बदल दी, सोच ही बदल दी है इंडियन क्रिकेट की. और सर ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आईपीएल इतना टैलेंट आ गया इंडिया में कि हमारी इंडिया की जो now we will see in England, India A will play India because of the talent available. So क्या आपको लगता है there is an opportunity next season before the mega auction to add more teams in the IPL? ताकि और they will add one next year and they'll add another one 2023.
Wow. So I look forward to that because more players will get more opportunity, and of course, it's more entertainment for us to watch more talent on TV. Sir, last question. कौन IPL जीतेगा आपके हिसाब से? ये तो देखो तुक्के में कोई भी आप मार दो, कोई भी तुक्का मार दो, बट ये है कि अगर सेफ खेलना है तो मुंबई इंडियंस, और किसी और टीम का कहना है तो सिंपली बिकॉज आप ये सोचते हो शायद मुंबई इंडियंस बोर हो गया होगा। हैट्रिक तो लेंगे हमको लग रहा है सर, टीम बहुत अच्छी है। क्या बहुत अच्छी टीम, बट देयर आर अदर गुड टीम्स आल्सो यार, टीमें सब बराबर है जो सेकंड लेवल की, या बट वही एक दिन दो दिन की बात होती है। सर एंड फाइनली व्हाट एडवाइस वुड यू गिव टू एवरी एस्पायरिंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट? एक एडवाइस जो आप हमें दे सकते हो टू बी मेक। बी ट्रू टू योरसेल्फ, ओरिजिनल रहो, मेहनत तो करो बट ओरिजिनल रहो, किसी और की तरह उसकी आइडेंटिटी लेने की कोशिश मत करो, बिकॉज यू आर व्हाट यू आर। एंड सेकेंडली मैं एक चीज बार बार कहता हूँ, मेहनत तो खैर है ही है, देयर आर टू थिंग्स इन लाइफ, स्किल एंड लॉयल्टी। स्किल एंड लॉयल्टी, स्किल सिखाई जा सकती है, स्किल कैन स्टिल बी टॉट, लॉयल्टी कैनॉट बी टॉट, बट इफ यू गॉट दैट क्वालिटी इन यू, अब लॉयल हो, स्किल तो कभी भी सीख सकते हो। आपके पास स्किल है, लॉयल नहीं हो ना, इट्स अ वेरी शॉर्ट वर्ल्ड देयर। Thank you so much, sir. I think those wise words will stay with me forever, and I'm sure whoever's watching will. Good luck, Viraj. I hope you do well, and I Thank you so hope much, we sir. catch Thank up you so soon. much for your time. Yeah, I hope to see you in person soon. If you're ever in England, so please come visit me. Pakka, pakka, ji pakka. Thank you. Thank you so much, sir. Have a great day. Bye. Bye bye. Good luck.